Hello students of class 8th. So today we are going to start new chapter, that is chapter 3 of your biology book. Okay, chapter 3 we are going to start. Here we will discuss about life processes. Okay, so in previous lecture we have the uh, transpiration was the chapter. You can just see chapter 2. So we have already discussed about some of the processes takes place in plants like water absorption, transpiration, these things. Now in this chapter we will discuss about life processes, and here in this you can say in this heading, under this heading we will discuss about reproduction. Okay, reproduction in plants, we will discuss about reproduction in plants. Okay, so reproduction in plants, development and growth, you can see in your book what are the objectives. So first of all we will discuss about asexual reproduction in plants. Okay, asexual reproduction in plants, then types of asexual reproduction. Okay, types, what are the types, how many types are there. Then two types of pollination like self pollination and cross pollination we will discuss here. Then fertilization, post fertilization, means each and every step we will discuss here. So first of all let's take introduction. So you can see this is the first page of your chapter 3, page number 27. You can open in your book also. So these are the objectives we have to learn in this chapter, like different types of asexual reproduction, vegetative propagation, advantages and disadvantages of vegetative propagation, then difference between self pollination and cross pollination. Okay, then artificial pollination and hybridization. So after this we will discuss about fertilization and post fertilization, then structure of seed, then monocot and dicot seed. These are the main objectives. So first of all let's discuss how the plant grows. Okay, so first of all you can just imagine कि one seed is there, this is the seed. Then if we want a plant from this seed, what we will do, हम क्या करेंगे, इस सीड से अगर हमें प्लांट बनाना है तो हम उसको कहाँ डालते हैं, सॉइल में. सपोज दैट दिस इज़ वन ऑफ द पॉट. ये हमारा एक पॉट है और इस पॉट के अंदर खूब सारा सॉइल है. ओके, दिस इज़ गार्डन सॉइल विच इज़ फर्टाइल. सो हम क्या करेंगे, इस सीड को हम इस सॉइल में क्या कर देंगे, यस हम इस सॉइल के अंदर इस सीड को डाल देंगे. एंड व्हाट विल हैपन देन, ये सपोज दैट ये सीड हमने डाल दिया. इसके बाद क्या होगा, इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा. दिस सीड विल जर्मिनेट. ओके, जर्मिनेशन होगा. एंड आफ्टर दिस जर्मिनेशन वन प्लांट अराइजेस फ्रॉम द सीड, एक प्लांट. ठीक है, ये सीड धीरे धीरे करके एक छोटे से प्लांटलेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और ये सीड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनविजिबल, आपको फिर ये नहीं दिखेगा, फिर प्लांट दिखेगा. सो टू थिंग्स आर देयर, रेडिकल एंड प्लीम्यूल. वी विल डिस्कस इट लेटर, बट हेयर यू कैन सी अब क्या होगा, ये सीड नहीं, अब आपको यहाँ पे रूट्स दिखने लगेंगे, है ना, रूट्स जो रेडिकल से बनते हैं. और ये रहा शूट, और ये रहे प्लांट्स के ब्रांचेस निकलने लगेंगे ना, लाइक दिस. एंड लीव्स, छोटे छोटे लीव्स निकलने लगेंगे. एंड देन फ्रूट, फ्लावर इज हेयर, देन फ्लावर के बाद फिर फ्रूट. तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता कैसे है, हाउ दिस लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, देन फिर डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर ग्रोथ कैसे होती है प्लांट की, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको आप मैग्नीफाई हम लोग कर लेते हैं, देन वी विल एबल टू सी what is written. Okay, so here you can see very easily, you can see here, living organisms live for certain period and then die. You all know क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लाइफ, ये जो इनका प्रोसेस है ये
इस लाइफ मोड में रहते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है. यू ऑल नो दैट. ओके, नाउ इट इज़ रिटन दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ काइंड. अब इससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. बट आफ्टर दिस हाउ विल पॉपुलेशन विल इंक्रीज, कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी, पता चला अगर उनकी डेथ हुई तो फिर पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. देन व्हाट विल हैपन. तो यहाँ पे क्या है कि दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ काइंड. इसलिए पॉपुलेशन को जो बनाए रखने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. और इसी रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स अपनी स्पीशीज़ को, अपनी पॉपुलेशन को जो है इस अर्थ पे मेंटेन रखते हैं. द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हमें कीवर्ड्स क्या क्या मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तभी वो क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट कीवर्ड इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन न्यू वंस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यू वंस ऑफ देयर ओन काइंड. क्लियर. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस देयर न्यू वंस फॉर क्या करने के लिए, मेंटेनिंग द पॉपुलेशन ऑन अर्थ. तो इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ सी हियर, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. सभी ने देखा होगा. दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स. अब किसी भी प्लांट का जो रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 पार्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा. रूट, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते. सीधे पार्टिसिपेट कौन करता है, फ्लावर. तो फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है. ठीक है, फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 तरह के होंगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. ओके, तो जो मेल पार्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट एंड फीमेल पार्ट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट. ओके, नाउ हियर दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट. तो क्या मिला हमें यहाँ पर कि ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज asexual reproduction एंड सेकेंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज asexual? ए में आप देखिए, asexual में ए लगा हुआ. ए का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. क्या होगा, एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. क्या होगा, एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. यहाँ पर एक ही पेरेंट से एक नया जो है ऑर्गेनिज्म या एक नया न्यू वन निकलेगा, ऑफस्प्रिंग निकलेगा, जो कि एकदम पेरेंट की तरह होगा. तो यहाँ पे फीमेल या मेल पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लांट्स के केस में न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल पेरेंट, बिना किसी सीड के. अगर बिना किसी सीड के न्यू प्लांट निकलता है पेरेंट से, पेरेंट प्लांट से, सपोज दैट ये कोई प्लांट है जो पेरेंट प्लांट था और यहाँ पे सपोज दैट इसकी लीफ है यहाँ पे, और इस लीफ से ही ये, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट है लीफ तो, है ना, इस लीफ से ही कोई नया प्लांट निकल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. क्लियर. नाउ in next page we can see the type of asexual reproductions. तो हम यहाँ पे asexual reproduction के types भी पढ़ेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे देखिए sexual reproduction is given. okay, sexual reproduction is given. तो let's discuss about this. The production of new plant from existing parent. अब इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो मेल एंड फीमेल पेरेंट by fusion of their gamete is called sexual reproduction. तो sexual reproduction में ज़रूरत होगी मेल एंड फीमेल पेरेंट की, 2 पेरेंट की ज़रूरत होगी, मेल एंड फीमेल पेरेंट. क्लियर. और इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही मिलकर फॉर्मेशन करेंगे सीड का, और सीड से फिर निकलेगा न्यू प्लांट. क्लियर. तो ये है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन.
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वीट, गेहूँ जो आपके घरों में होगा, वीट, पी प्लांट, राइस, सनफ्लावर, कॉटन, मस्टर्ड, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड के थ्रू ये ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हियर यू कैन सी द फर्स्ट इज fragmentation, then spore formation, and then vegetative propagation. So we have to learn these three types. Okay, asexual reproduction में first हम देखते हैं fragmentation. First is fragmentation. Now here fragment का क्या मतलब होगा? किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, ब्रेकअप करना, ठीक है, that will be called as fragment. Clear? तो यहाँ पे breaking of the plant body फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. किसी भी पेरेंट प्लांट बॉडी से छोटा सा कोई पार्ट अगर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ब्रेकिंग ऑफ प्लांट बॉडी इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स वेयर ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज एंड मैच्योर्स टू फॉर्म न्यू प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. किसी भी पेरेंट बॉडी से अगर कोई फ्रेगमेंट निकलता है और वो फिर एक नया प्लांट बना लेता है या नया इंडिविजुअल बना लेता है, तो दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन. लाइक यू कैन सी हियर, ये क्या है? स्पाइरोगायरा. ठीक है, स्पाइरोगायरा एक तरह का, यहाँ पे हम एल्गी पढ़ते हैं, स्पाइरोगायरा. तो ये क्या करता है? सपोज दैट दिस वन इज़ पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट सेल है. इसमें क्या हुआ? ये पेरेंट बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अब 2 पार्ट्स में डिवीजन के बाद क्या हुआ? हर एक पार्ट ने एक नया इंडिविजुअल बना लिया, एक नया स्पाइरोगायरा बन गया. So this is the example of fragmentation. Now the second one is spore formation. अब spore formation क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है छोटे छोटे जो दाने जैसे, आप उसको बहुत छोटे होते हैं, वेरी माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनमें एक नए इंडिविजुअल में चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही कॉमन है मॉसेस में. देखते हैं. Spores are asexual reproductive bodies covered by hard protective coat. बाहर से ये बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं ताकि कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह से, कोई हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, बहुत लो ह्यूमिडिटी हो, या फिर हार्श कंडीशंस हो, वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, तो भी ये सर्वाइव कर जाएं. इसलिए इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है. ठीक है. दीज स्पोर्स आर लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं और ये बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हैं. तो सपोज़ दैट कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें प्लांट जो है वो प्लांट को ग्रो करने के लिए कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, जैसे उनको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है, तो इन दैट कंडीशन स्पोर फॉर्मेशन इज़ ओनली एक ही ऑप्शन होता है. तो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड स्पोरेंजिया. अब यहाँ पर देखिए, सोराई इन फर्न ये दिखाया गया है. यहाँ पर छोटे छोटे स्पोरेंजिया हैं और उनसे निकलेंगे स्पोर्स. फिर ये क्या होंगे? ये स्पोर्स जब मैच्योर होंगे तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है. स्पोरेंजियम में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. जब ये बर्स्ट होता है तो फिर उनमें से हर एक स्पोर जर्मिनेट करेगा और एक नया फर्न बना लेगा. ठीक है. सो दिस वन वॉज द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल था हमारा. कुछ फंगस ऐसे हैं जिनमें बडिंग भी होती है, बट बडिंग इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो हम बडिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यू कैन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. द नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? डेफिनेशन हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यू कैन सी हियर. बट बिफोर दैट बेटा, एक छोटा सा टेस्ट योर सेल्फ, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं. Here you can see very easily सोराई is found. सोराई अभी मैंने बताया था आपको, सोराई कहाँ पे होते हैं? आर फाउंड इन फर्न. कहाँ होते हैं? फर्न में. आप अपनी बुक में टिक लगा लेंगे, फर्न. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? कौन सा है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता? देखिए, ब्रायोफाइलम, टर्मरिक, पोटैटो, ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. ओनली वीट, ये वीट ऐसा होता है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है. तो फर्स्ट वाले का क्या था? ए था, और सेकंड वाले का क्या है? डी.
थर्ड में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि बडिंग जो है वो यीस्ट में आपको देखने को मिलती है, किसमें, यीस्ट में। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय विच मेथड, अभी बताया था आपको फ्रेगमेंटेशन, कौन से मेथड से, फ्रेगमेंटेशन, क्लियर, ये बी वाला है। सो अभी हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? Here you can see dear, vegetative propagation definition is given. Some plants reproduce through vegetative part. मैंने अभी बताया था जैसे रूट, स्टेम और लीफ ये सभी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अगर इनसे कोई प्लांट बॉडी निकल जाती है तो वो कौन सा टाइप होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन from which, here you can see, type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative part like stem, root and leaves. ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी एक से एक नया प्लांट बॉडी निकलता है तो दैट विल कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So students, we will discuss about the type of vegetative propagations like tuber formation, and then we will discuss about bulb, rhizome, corm. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय डिफरेंट मीन्स इन नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड नोट्स मेकिंग भी करते रहेंगे. और ये जो हमने अभी टेस्ट योर सेल्फ एक एक्सरसाइज की है इसको आप कॉपी में भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू.